afternoon student. This is the video for plus 2 class subject biology. Chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. These are the previous topic which we have discussed in previous video. We have discussed the structure of flower, structure of stamen which is the male part of the flower, and we have discussed also the development of pollen sacs in anther and sporogenesis. Sporogenesis, you know very well, this is the process in which microspores are formed from microspore mother cells. Today we are going to understand the topic structure of pollen grain and development of pollen grain or male gametophyte. Actually pollen grain act as male gametophyte and represent male gametophyte. Gametophyte that means which carry gamete. Gametophyte that means which carry gamete. You don't be confused with pollen grain as a male gamete. Pollen grain कोई male gamete नहीं है. It carry male gametes later. Firstly, we have to discuss the structure of pollen grain. The pollen grain are mostly spherical in shape and about 25 to 50 micrometer in diameter. It is two-layered structure in which outer layer is called exine and inner layer is called intine. This is the diagram of pollen grain, and you can see the outer layer which is called exine and this is the inner layer which is called intine. Outer exine having smooth, but in some cases it may be rough. This rough surfaces due to different patterns in their surfaces. The special thing about exine, it is made up of a special material which is called sporopollenin. This sporopollenin, the chemical which make pollen grain resistant to pollen grain for high and low temperature. Due to this sporopollenin, pollen can tolerate high and low temperature and it can survive in strong acid and strong base. And you can understand that this sporopollenin, due to this sporopollenin, none enzyme can digest the pollen grain. At the surfaces of exine is not continuous layer. Exine is absent in some places, where it is absent, this is called germ pore. In some plant or in some cases it is single place, that means pollen grain can carry one germ pore and maybe it is 2, 3 or multi. On the basis of number of germ pores, the pollen grain may be monocolpate, bicolpate, tricolpate or multicolpate. Mono that means single. Single that means pollen grain carry only one germ pore. This type of pollen grains are found majorly in monocots. Bicolpate, bi that means 2, where 2 germ pore are present in a pollen grain. Tricolpate that means 3 germ pore are present in pollen grain, especially in dicots. And multi that means more than 3. Then these are the type of pollen grains which are based on number of germ pores. Next layer, that is called intine. Intine is very thin layer as compared to exine and it is continuous layer. It is not absent any region, any place, and it is made up of cellulose and pectin. And the study of pollen grain is called palynology. This was the structure of pollen grain. Now the development of male gametophyte, that is pollen grain. Pollen grain का डेवलपमेंट हम 2 स्टेप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन
पोलिनेशन से पहले यानी कि एंथर को छोड़ने से पहले कुछ उसमें डेवलपमेंट होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, और फिर पोलिनेशन के बाद स्टिग्मा पर जाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो फिर दोबारा से डेवलप होगा। तो इस तरह से हम मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट को 2 स्टेप में पढ़ सकते हैं, दैट इज प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट एंड सेकेंड इज पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। प्री दैट मीन्स बिफोर पोलिनेशन। पोलिनेशन पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल और कार्पल। यानी कि ये बात की बात है कि पोलिनेशन सेल्फ है या क्रॉस है। पोलन ग्रेन जो है अपने ही स्टिग्मा पे जा रहा है या दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, बट व्हेन वी हैव टू डिफाइन द पोलिनेशन तो तब हम यही कहेंगे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमन टू स्टिग्मा। तो पोलिनेशन से पहले यानी कि स्टिग्मा से पहले पोलन ग्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे जैसे ही पोलन टेट्राड से पोलन ग्रेन डिफ्रेंशिएट होता है, अलग होता है, यानी कि न्यूली फॉर्म्ड होता है, तो उस पोलन ग्रेन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब न्यूली फॉर्म्ड पोलन ग्रेन होता है तो इसमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज द एक्साइन इन टाइम एंड ये यहाँ पर एक्साइन इन टाइम और ये न्यूक्लियस और ये जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म। तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियस लिखा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही डेवलप करना शुरू करता है, डेवलप के टाइम इट ग्रोज इन साइज, जैसे ये अपने साइज में ग्रो करेगा और वैक्यूल्स आर फॉर्म। धीरे धीरे इसमें वैक्यूल्स की फॉर्मेशन शुरू होगी और वैक्यूल्स के बनने की वजह से ये जो न्यूक्लियस पहले सेंटर में था ये पुश्ड आउट होकर के पेरिफेरी में यानी किसी एक साइड में ये चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आए, वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड न्यूक्लियस पुश्ड आइदर वन साइड। आफ्टर दैट जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। यहाँ पर आपको बिल्कुल समझने की बात है, पोलन मदर सेल डिप्लॉयड थी और डिप्लॉयड पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ था जिससे 4 पोलन ग्रेन बने थे। तो इसका मतलब क्या है, पोलन ग्रेन जो है हैप्लॉयड है नेचर में। अब बाकी के जो भी डिवीजन होंगे तो वो माइटोसिस ही होने वाले हैं। तो माइटोसिस के डिवीजन होने से 2 सेल बनेंगी, लेकिन ये जो डिवीज़न है इन वैक्यूल्स की वजह से और जो न्यूक्लियस है उसका पेरिफेरी के होने की वजह से इसमें अनइक्वल डिवीज़न हो जाएगा। अनइक्वल डिवीज़न होने की वजह से लार्जर सेल बनेगी और एक स्मॉल सेल बनेगी। लार्जर सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और स्मॉल सेल को हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर डिवीज़न को होते हुए दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है ये वेजिटेटिव सेल आगे जाके बनेगी। ये न्यूक्लियाई है वेजिटेटिव न्यूक्लियाई एंड दिस इज द जनरेटिव न्यूक्लियाई। और जब डिवीज़न होता है तो स्पिंडल बन रहा है, तो ये एक तरह का एसिमेट्रिकल स्पिंडल है। एसिमेट्रिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिवीज़न अनइक्वल हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है क्रिएट हो जाएगी। तो इसके बाद वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज है और एक स्मॉल जनरेटिव सेल बन जाएगी। तो वेजिटेटिव सेल में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारी वैक्यूल्स होंगी और बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर जो हैं वो सब होंगी। और ये इसकी खास जो बात है, इट कंटेन्स रिजर्व फूड्स। और आगे चल के ये जितने भी मेल गैमेटोफाइट हैं उनको नरिशमेंट करने का काम करेगी, उनको नरिश करेगी उनके डेवलपमेंट के टाइम। और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस से थोड़ा बड़ा होता है, इट इज लार्जर देन जनरेटिव न्यूक्लियस। और जनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसके कंपैरेटिवली डेंस होगा
और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके कंपैरेटिवली स्मॉल होगा। और इसके जो खास बात है, ये इतना स्मॉल है और ये बाद में इसकी ये साइटोप्लाज्मिक जो लेयर जो इसमें बनती है ये भी डिसॉल्व हो जाती है। और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये फ्रीली फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस में। जनरेटिव सेल है इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पोस्ट पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन होने के बाद, यानी कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंडिंग होने के बाद अब पोलन ग्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट होगा। पोलन ग्रेन जब लैंडिंग होगा स्टिग्मा के ऊपर तो उस वक्त पहली बात तो ये कब ग्रो करेगा, डेवलप करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पोलन ग्रेन कॉम्पेटाइबल है या नहीं। कॉम्पेटाइबल दैट मीन्स हवा में अगर जैसे हवा के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो पोलिनेशन में बहुत अदर जो स्पीसीज हैं या और भी कितनी तरह के पोलन ग्रेन्स इसमें हैं, लेकिन फिर जो स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन है इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा और अगर ये सूटेबल होगा यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए तभी ये आगे डेवलपमेंट करेगा। अगर कॉम्पेटाइबल पोलन ग्रेन होता है तब जो वेजिटेटिव सेल है, आपको पता है 3 सेल्ड में 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो है पोलन ग्रेन जब 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, 3 सेल्ड दैट मीन्स जिसमें 60% में तो हम लोग 2 सेल्ड स्ट्रक्चर यानी कि फर्स्ट वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, 2 सेल का जब पोलन ग्रेन होता है इतने डेवलपमेंट पे ही ये शेड आउट हो जाता है, पोलिनेट हो जाता है। लेकिन 40% ही ऐसा है जिसमें केवल 3 सेल स्ट्रक्चर ही पोलन ग्रेन की जो है पोलिनेट होती है। तो अब यहाँ पर आपको पता है इसमें 2 सेल हैं, वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है। तो इसके जो वेजिटेटिव सेल है ये स्टिग्मा पर एब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? थ्रू जर्म पोर्स। और वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से पोलन ग्रेन जो है साइज में बढ़ेगा, स्वेलअप हो जाएगा, ग्रो करेगा। इसके बाद पोलन ट्यूब अराइज होगी जर्म पोर से, और इसके खास बात ये है पोलन ट्यूब के फॉर्म में केवल इंटाइन ही बाहर आएगी, यानी कि पोलन ट्यूब इज कवर्ड ओनली इंटाइन। इट कंटेन्स ऑल कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी कंटेंट है, चाहे वो जनरेटिव सेल हो चाहे वेजिटेटिव सेल का कंटेंट हो, वो सभी कंटेंट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर इसके बाद ये पोलन ट्यूब कैसे मूव करती है? पोलन ट्यूब को मूव करने के लिए ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है विच नेम इज पैक्टिनेजेस। पैक्टिनेजेस और इसके साथ में कुछ अदर एंजाइम्स भी हैं जो ये लगातार टिप से सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो ये टिश्यू है स्टाइल का वो डाइजेस्ट होता जाता है और पाथ जो है क्रिएट होता जाएगा और पोलन ट्यूब जो है मूव करती रहेगी। इसके बाद जैसे ही अपने पॉइंट तक पहुंचते हैं तो जनरेटिव सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये इक्वल होगा और 2 मेल गैमेट जो हैं इक्वल हैं, ये इक्वल 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म। तो ये मेल गैमेट जो हैं ये बन जाएंगे और ये आप देख रहे हैं दीज आर द 2 मेल गैमेट्स। तो इसके बाद ये था डेवलपमेंट पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पोस्ट पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन के बाद किस तरह से मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट करता है। तो ये जो टॉपिक था अब तक जितना भी हमने पढ़ा ये सब मेल गैमेटोफाइट तक था। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम वो फीमेल, यानी कि उसमें हम ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओवरी और उसके बाद ओव्यूल, और इसी तरह से हम फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे।